गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है।
पंचण मुक्कारो सव्व पावपणा सणो मंगळानंच सव्वेसी पढमम हवई मंगलम नमोकार मंत्र है न्यारा किसने लाखों को तारा नमोकार मंत्र है न्यारा इसने लाखों को तारा इस महामंत्र का जाप करो भवजल से मिले किनारा नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो ओछायाणम नमो लोये सव्वसाहुणम नमो लोये सर्वसाहुरम् केसो पंचण मुक्कारो सव्व पावपणा सणो मंगळानंच सव्वेसी पढमम हवई मंगलम नमो 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 नमोकार मंत्र है न्यारा किसने लाखों को तारा नमोकार मंत्र है न्यारा इसने लाखों को तारा इस महामंत्र का जाप करो भवजल से मिले किनारा नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो ओछायाणम नमो लोये सव्वसाहुणम नमो लोये सर्वसाहुरम् केसो पंचण मुक्कारो सव्व पावपणा सणो मंगळानंच सव्वेसी पढमम हवई मंगलम नमो 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 આગળ થી થોડા ખસી જાઓ આગળથી ખસી જાઓ આગળથી ખસી જાઓ બધું
सात आठ छाप नहीं साहब ने
અહીંયા તો ભીડભાડ એટલી બધી હતી. હા આરામ કરો, પાણી આની બાપુ. બેસ. આખો પરિવાર આવે છે. એમના દીકરી છે અમોલીબેન, આ એમના સની અપૂર્વભાઈ. હા, એ ઝઘડાય પ્રકાશભાઈની ખુરશી. પ્રકાશભાઈના ગ્રાન્ડ ડોટર છે. ખુરશી લઈ લો, ખુરશી. એનું નામ છે મીરા. મીરાબેન. પેલી ખુરશી લે આવો બોલી આ રજનીભાઈ આ ખુરશી પ્રકાશભાઈ આવો આખા પરિવારને બધાને બોલાયા છે અમને. ઘણા ટાઈમથી ભાવના હતી આપણે પગલા કરાવવાની. ગઈકાલે એક બહેનની દીક્ષા હતી, બેબીની. 1 કિલોમીટર. જી જી 10 કિલોમીટર. હા, 9 થી 10 કિલોમીટર કાલે ફંક્શનમાં બેઠા, કારણ કે બહુ મોટું ફંક્શન, મોટી વિધિ હતી આચાર્ય પદની. એમ 2 દિવસ બહુ 2 દિવસ ગઈકાલે દીક્ષા ઉદઘાટન. હા, એ વખતે થોડાક બહુ પડે, પણ એમનો વિલ પાવર એટલો છે ને કે આપણને ઘણી વખત શરમ આવે એમ. 91 યર્સ છે પણ વિલ પાવર એમનો બહુ સ્ટ્રોંગ છે. એટલે હવે હું નથી જતા. એમનો ભાવ ભક્તિ જોઈને જ આવ્યા. માણસને ખેંચી લે, ભગવાનને ખેંચી લાવે. બાકી કોઈ ઠેકાને હું જાઉં નહીં. મુંબઈમાં રહ્યો ને, અંબાણીના બાપુજી હતા ધીરુભાઈ, ખૂબ આગ્રહ કર્યો મને તમે આવો. અંબાણીને ત્યાં હું નથી. આ પ્રકારની ધારણા હોય, એને આવવું હોય આવો. પ્રભુનો દ્વાર છે, ખુલ્લું છે. એટલે કોઈને ત્યાં હું કર્યો નથી. દિલ્હીમાં રહ્યો, કોઈને ત્યાં વડાપ્રધાને મને કીધું આ પધારો, 1 દિવસ અહીંયા રહો, તમારી સુવિધા છે, તમે આવો. હું ક્યાંય ગયો ક્યાંય નહીં. અમે પણ ગુરુ મહારાજને પૂછીએ છીએ કે સાહેબ આપ અમને ત્યાં પધારો, કેમ કે એમની ના જ પાડે. બરોબર એ સમય આવે. મુંબઈના અંદર એ વ્યક્તિના સમાચાર આવ્યા સવારે એ બહુ સિરિયસ છે. હું 5 મિનિટમાં ગોળીથી જરા મારું મંગળી આશીર્વાદ આપવા. એટલે એ આવે નહીં ત્યાં હું બેઠી 2 કલાક બેઠા. બીજી પોણો કલાક રાહ જોઈ બેઠો. અચાનક જ આવે, અચાનક જ પછી હું આવ્યો. આજે આપણે આવ્યા છે, હું જાઉં નહીં. પ્રેમ છે વગર કીધે અચાનક પરિવારના બધા જે પણ અહીંયા છે પ્રોપર અમદાવાદ. મીરા તમારી પાસે અમારા બહુ જ વડવા જે બાકી હોય આગળ આવી જાઓ, 65 માટે આવી જાઓ. એ સાત બીજી મળશે ત્યાં છે, બટવા છે.
કલકત્તા વિરાજમાન કલકત્તા હતા ને હા ત્યારે પધાર્યા હતા કેટલા પધાર્યા હતા મને ખબર છે બહુ વર્ષો થયા પણ પધાર્યા હતા સમોસું શેલા સ્કાય સિટી પછી પાલિતા મુંબઈ મળી જઈશું પાછા મુંબઈ અંદર જઈએ પ્રવેશ કરીશું સ્કાય સિટી શેલા એટલે બોપલથી બોપલથી આગળ હા મંગળવાર આવે હા નમો મોક્ષાય નમો મંગલાનંદ સર્વેશમ અર્હન્મતો ભગવાન મહિતા સિદ્ધાષ્ટ સિદ્ધિસિદ્ધ આચાર્ય જનકાસન પૂજ્યા ઉપાધ્યાયકા શ્રી સિદ્ધાંત સુપાઠકા મુનિવરા રત્નત્રયારાધકા પંચૈતે પરમેશ્વરા પ્રતિના કુર્વંતુ ગોમંગલમ મંગલમ ભગવાન વીરો મંગલમ ગૌતમ પ્રભુ મંગલમ સ્થૂળવદ્રાદ્ય જૈન ધર્મસ્તુ મંગલમ સર્વારિષ્ટ પ્રણાશાય સર્વાભિષ્ટાભુદાયિને સર્વલબ્ધિ નિધાનાય શ્રી ગૌતમ સ્વામીને નમઃ શિવમસ્તુ સર્વજગત અરહિત નિર્તા ભવંતુ ભૂતગણ દોષાઃ પ્રયાન્તુ નાશમ સર્વત્ર સુખી ભવતુ ઉપસર્ગાક્ષયન્યાન્તિ સિદ્ધ્યન્તિ વિઘ્નવલ્લય મનઃ પ્રસન્નકામેતિ પૂજ્યમાને જિનેશ્વરે સર્વમંગલ માંગલ્યમ સર્વકલ્યાણકારણમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણમ સરોજીને શાસન પ્રકાશભાઈ આવો પેલી બાજુ થોડા ફર્યો પ્રકાશભાઈ પ્રવચનનો સમય બધા ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रभु कृपा से गुरु मिले, गुरु कृपा से प्रभु मिले, प्रभु कृपा से गुरु मिले, गुरु कृपा से प्रभु मिले, प्रभु कृपा से गुरु मिले, गुरु कृपा से प्रभु मिले, प्रभु कृपा से गुरु मिले, गुरु कृपा से प्रभु मिले, प्रभु कृपा से गुरु मिले, गुरु कृपा से प्रभु मिले, प्रभु कृपा से गुरु मिले, गुरु कृपा से प्रभु मिले। ओम गुरु परात्पर गुरु ओंकारा गुरु तव शरणम। ओम गुरु परात्पर गुरु ओंकारा गुरु तव शरणम। આજે આપણા અત્યંત સદભાગ્ય છે તો આપણે આંગણે ગુરુવર આચાર્યજીના પગલાં થયા છે. હું આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. શરૂ થશે રાજેશભાઈ એક ભજન છે. નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયર્યાણમ નમો વજ્જાયણમ નમો લોય સૌ એસો પંચ નમોકારો સૌ પાવપણાસન મંગલાણમ ચ સૌવેસી પડમં ભવૈ મંગલમ પડમં ભવૈ. બોલો દેવાધિદેવ શ્રી महावीर स्वामी भगवान की, बोलो सब संतन की, बोलो राष्ट्र संत आचार्य गुरुवर श्री पद्मसागर जी महामुनि राज की, बोलो आचार्य श्री प्रशांत सागर जी महाराज, आचार्य श्री मुनि श्री भुवन पद्मसागर महाराज की, बोलो आचार्य संघ की जय. सौने भाव थी जय जिनेन्द्र जय प्रभु. જેમ પ્રકાશજીએ કીધું, આપણા સૌના પરમ સૌભાગ્ય છે આચાર્ય ગુરુવર એ પધાર્યા છે. પ્રકાશભાઈ એમની ઇન્ટ્રોડક્શન તો આપશે, પણ એક વાક્યમાં કહું, 1,00,000 કિલોમીટરથી વધારે પદયાત્રા, 125 જિનાલયના અંજન શલાકા મહોત્સવ, 105થી વધુ વિવિધ દીક્ષાઓ અને વિશ્વમાં નંબર 1 કહી શકાય એવા સાંપ્રતિ મ્યુઝિયમનું પરિકલ્પનાથી શરૂ કરીને પૂર્ણાહુતિ સુધીનું સમગ્ર ભગીરથ કાર્ય જે રાષ્ટ્રસંતના કરકમલો દ્વારા થયું છે, એવા મહાન આચાર્ય કે જેઓ સામાન્યતઃ કોઈના વિશેષ આમંત્રણથી એમની જગ્યાએ જતા નથી, એ આ પ્રકાશભાઈના પ્રેમની દોરીએ ખેંચાઈને અહીંયા પધાર્યા છે. પ્રકાશભાઈ, સુરેખાબેન, સમગ્ર પરિવારને આપણે વંદન કરીએ છીએ આજની ઓપોર્ચ્યુનિટીમાં. બ્રહ્માનંદજીનું એક નાનું પદ છે, જ્યારે સદગુરુ ઘરે આવે ત્યારે કેવો ભાવ થાય. નાની 5 કડી છે. आज सखी सद गुरु घर आए, आज सखी सद गुरु घर आए, मेरे मन आनंद बयोरी, मेरे मन आनंद बयोरी, आज सखी
अमृत वचन सुनत काम नाशो, अमृत वचन सुनत काम नाशो, घट भीतर प्रभु पाय लियो री, घट भीतर प्रभु पाय लियो री। आज सखी सद्गुरु घर आए, आज सखी सद्गुरु घर आए। जन्म जन्म के संशय टूटे, जन्म जन्म के संशय टूटे, भव भय ताप मिटाई लियो री, भव भय ताप मिटाई लियो री। आज सखी सद्गुरु घर आए, आज सखी सद्गुरु घर आए। ब्रह्मानंद दास दासन को, ब्रह्मानंद दास दासन को, चरण कमल लीप टाई लियो री, चरण कमल लीप टाई लियो री। आज सखी सद्गुरु घर आए, मेरे मन आनंद भयो री, मेरे मन आनंद भयो री। आज सखी सद्गुरु घर आए, आज सखी सद्गुरु घर आए, आज सखी सद्गुरु घर आए। वंदन भगवान, वंदन। सुरेश આપણી વચ્ચે અત્યારે પ્રશાંત પરિવાર અને કોબા પરિવાર, અને કોબા પરિવાર એ બધા મહારાજશ્રીના જ પરિવારમાં છે. એટલે મહારાજશ્રી જરા બેનશ્રીને અને કોબાના બધાને જોયા એટલે મહારાજશ્રીના મોં પર ચમક આવી ગઈ, ઘરે આવ્યા જેવું લાગ્યું. આપણી સાથે પૂજ્ય બેનશ્રી છે જે અમારા કોબાના ગુરુમાં છે. આપણી સાથે પૂજ્ય સુરેશજી છે. સુરેશજીને બધા પ્રેમથી ભૈયાજી કહે છે. સુરેશજી બાલ બ્રહ્મચારી સાધક છે, જેઓ તેમની અત્યંત યુવાન વયે પૂજ્ય આત્માનંદજી જે અમારા ગુરુદેવ કોબા આશ્રમના અને પૂજ્ય ગુરુદેવના અનન્ય ભક્ત એવા પૂજ્ય આત્માનંદજીના ચરણોમાં પોતાનું જીવન યંગ એજમાં સમર્પિત કર્યું. તેઓ શ્રીનું પૂર્વકાળ પણ ખૂબ જ સેવામય રહેલો અને લગભગ 20-22 વર્ષની ઉંમરે તેઓ શ્રી પૂજ્ય આત્માનંદજીના ચરણોમાં સંપૂર્ણ સમર્પિત થઈ ગયા. તેઓ શ્રી પાટીદાર પરિવારમાંથી રાજસ્થાનમાંથી આવે છે કે જ્યાં એમને જૈન શાસ્ત્રોનો બહુ જ અલ્પ અનુભવ અથવા નહિવત અનુભવ હતો, પણ એમની તીવ્ર ગુરુભક્તિ અને તીવ્ર જ્ઞાનના ક્ષયોક્ષમથી એમણે જૈન શાસ્ત્રોનો બહુ ભક્તિથી અને બહુ તલસ્પર્શી અભ્યાસ કર્યો. અને તેઓ શ્રી અત્યારે કોબામાં બધાના માર્ગદર્શક તરીકે સુંદર ફરજ બજાવે છે, સાહેબજીના સેવક તરીકે. અને અમારા બધાના એ ઉત્તમ અને પરમ કલ્યાણકારી માર્ગદર્શક છે એવા શ્રી
સુરેશજી પણ અહીંયા પધાર્યા છે. તો આપણા સૌ વતી આપણે સુરેશજીને વિનંતી કરીએ કે આપણને એમના મધુર અમૃત વચનોનો લાભ આપે. ઓમ પૂજ્ય સુરેશજી. जिनके चरण में सुर असुर सादर झुकाते शीश को, मेरी विनय युत वंदना उन जीन वीर जगदीश को, मेरी विनय युत वंदना उन जीन वीर जगदीश को. परात्पर गुरुवे नमः, परंपराचार्य गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः. महान जिन शासन धर्म प्रभावक एवं परम पूज्य महाराज श्री ने प्रणाम. समस्त संघ ने सविनय वंदन. આપણે બધા મહારાજશ્રીના અમૃત પ્રવચનનો લાભ લેવા માટે અહીંયા ભેગા થયા છે. હું વધારે સમય નહીં લઈશ, 2-5 મિનિટ લઈશ. પણ આટલા મોટા મહાન પ્રભાવક સંત એક ફેક્ટરીમાં શા માટે આવ્યા છે એ મારે બતાવવાનું છે. કે શ્રી પ્રકાશભાઈ મારા શ્રી સાથે અત્યારે વાત થતી હતી તો એમણે કીધું કે અમને કોઈ મોટામાં મોટા વ્યક્તિઓ બોલાવે તો કોઈને ઘરે ના જઈએ, સાધુ સંતો પાસે કોઈ આવે. પણ પ્રકાશભાઈનો ને સુરેખાબેનનો એટલો પ્રેમ એમણે જોયો કે તરત એમને હા પાડી દીધી. આ ભક્તિ છે. મારે કહેવાનો આશય એ છે કે પ્રકાશભાઈ મોટા ઉદ્યોગપતિ તરીકે ગણાય છે, પણ એની સાથે સાથે એની પેરેલલ એમને જીવનમાં સંત સેવા, સંતની આજ્ઞા, ભક્તિ અને પરોપકાર આ સાથે સાથે રાખ્યા. આપણા ભારતમાં એમ કહેવાય છે આર્ય સંસ્કૃતિમાં કે સૌથી મોટો કોઈ પાપ હોય ને, કોઈ પાપી વ્યક્તિ હોય તો કોણ પાપી વ્યક્તિ છે? તો જેનો કોઈ ગુરુ ન હોય એટલે નિગુરો કહેવાય. જે નગુરો હોય એ સૌથી પાપી વ્યક્તિ હોય. ભલે તમે દુનિયાના શિરમોર બની જાઓ લૌકિક દૃષ્ટિથી, પણ જે કોઈની આજ્ઞામાં નથી, જેનો અહંકાર કોઈ પાસેથી ઓગળતો નથી, એ વ્યક્તિ ઊંચો જાય છે. પણ તમે પારમાર્થિક દૃષ્ટિથી જુઓ તો એ નિરંતર નીચો જાય છે. પણ જેનો અભ્યુદય નિશ્રેયસના લક્ષ્યથી હોય, જેનો ભૌતિક વિકાસ અધ્યાત્મના ધરાતલથી પેદા થયો હોય, એ વ્યક્તિ જેટલા જેટલા ઊંચો જશે એટલો એટલો એનાથી લોક કલ્યાણના કામ થશે અને ક્યારે પણ એનો અહંકાર ઊંચો ન થાય. સંત ચરણોમાં ઝૂકશે અને જે સંત ચરણમાં ઝૂકે છે કાલાંતરમાં લોકો એમના ચરણમાં ઝૂકશે. આ બધી સંત સેવાની, આ બધી સંતરૂપી આચરણની અને સંતત્વનો પ્રતાપ છે. એવા ઘણા બધા સંતોની સેવા આદરણીય શ્રી પ્રકાશભાઈ કરી છે. અમારે જ્યારે વાત થાય તો કહેતા કે સૌથી પહેલાં એમને વિનોબાજીથી ખૂબ પ્રભાવિત થયા. વિનોબાજી એક મહાન સંત, ત્યાંથી લગાવીને આત્માનંદજી સુધી અને અત્યારે મહારાજશ્રી સુધીની એમની જે આ સંત સેવાની યાત્રા છે, આના કારણથી આ બધું એમને જીવનમાં જે દેખાય છે એ છે. જગતમાં મહેનતથી કાંઈ નથી મળતું,
જગતમાં જે મળે છે એ પુણ્યથી મળે છે, અને પુણ્ય છે એ ધર્માત્માઓની સંતોની સેવાથી મળે છે. એટલે ભલે આપણે કામ કરતા હોઈએ, અહીંયા બધા આપણે ફેક્ટરીમાં સેવા આપવાવાળા, કામ કરવાવાળા, પણ આપણે જીવનમાં કોઈકની કોઈક જગ્યાએ ધર્મ હોવું જોઈએ, અને કોઈકની કોઈક જગ્યાએ કોઈકના આશ્રયમાં કોઈક સંતની શરણ એ આપણે જીવનમાં હોવી જોઈએ. તો આપણે નિરંતર ભૌતિક રૂપથી અને આધ્યાત્મિક રૂપથી ધીમે 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 આગળ વધતા જઈશું. અને માત્ર આપણે પૈસા આગળ દોડીશું અને જીવનમાં ધર્મ ન હોય, સાધુ ધર્માત્મા ન હોય, અને જીવનમાં કોઈ ગુરુ ન હોય, તો માત્ર આપણો અહંકાર વધશે, જીવનમાં સગવડ હશે પણ શાંતિ નહીં હશે. શાંતિ માત્ર એક સંત ચરણથી હોય છે. સંત પરમ હિતકારી જગત માહી, સંત પરમ હિતકારી, સંત પરમ હિતકારી જગત માહી, સંત પરમ હિતકારી. પ્રભુ પદ પ્રગટ કરાવત પ્રીતિ, ભરમ મિટાવત ભારી જગત માહી, સંત પરમ હિતકારી. જેના જીવનમાં આપણે પુરાણો ઇતિહાસ જોઈએ, તે જે મોટા મોટા રાજા મહારાજાઓ થઈ ગયા, પણ જેના જીવનમાં કોઈ સંતનો આશ્રય આવ્યો, એ ઇતિહાસમાં ને પુરાણોમાં એ રાજા મહારાજાને આપણે ગુણ ગાઈએ છીએ. અને જેના જીવનમાં ધર્મ, સંત અને અધ્યાત્મ ના આવ્યું, આજે કોઈ એમને ઓળખતા નથી, ભલે મોટા મોટા ચક્રવર્તી થઈ ગયા. તો આપણે બધા સંત મહાત્માની સેવા કરી અને આપણું આ જીવન છે એ જીવનને દીપાવીએ, એ જ ભાવના સાથે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. चरम तीर्थंकर तपश्चर्या के द्वारा जो उन्होंने परम तत्व को प्राप्त किया, सारे जगत के कल्याण के लिए प्रवचन के द्वारा सहज में आपको अर्पण किया है. आज बहुत ज़्यादा प्रेम हुआ. प्रकाश भाई के आग्रह से इस फैक्ट्री में मेरा आना हुआ. बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं. उन्होंने कहा कि जाते समय फैक्ट्री में लाभ दे करके जाए. आया हूँ, आशीर्वाद देने आया हूँ. ये भी एक फैक्ट्री है और मेरी दृष्टि के अंदर श्री आत्माराम भाई की भी एक फैक्ट्री है, चलती फिरती. लोग कहते हैं महाराज धर्म कहाँ है, धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करना है. मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बतलाता हूँ धर्म का जन्म कहाँ होता है, उसको व्यवहार में किस तरह लाया जाए, जीवन के अंदर धर्म आशीर्वाद लोग कैसे बने. जहाँ फैक्ट्री होती है, ये सेठ आत्माराम भाई इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. ये चलती फिरती फैक्ट्री है, लॉन्ग लाइफ गारंटेड है. इसमें कोई लाइट प्रॉब्लम नहीं, लेबर प्रॉब्लम नहीं, कोई स्ट्राइक नहीं, कोई लाइसेंस या परमिट लेने की ज़रूरत नहीं. ये लॉन्ग लाइफ फैक्ट्री है. इसके मैनेजिंग डायरेक्टर सेठ आत्माराम भाई. इस फैक्ट्री की बड़ी विशेषता है और कुछ नहीं. 3 शब्दों में धर्म का परिचय मैं देता हूँ. 3H, हेड, हार्ट एंड हैंड.
3H, यही धर्म रहता है। ये धर्म का ही एक सामान्य परिचय है। इस फैक्ट्री का प्रोडक्शन आपके दिमाग में होता है। सद्विचार के द्वारा पुण्य का अनुबंध होता है। सद्विचार के द्वारा परोपकार की भावना जन्म लेती है। तो सद्विचार का जन्म स्थान तो आपका दिमाग है, ज्ञान तंतु, ब्रेन सेल्स। तो इस फैक्ट्री का प्रोडक्शन यहाँ होता है। पर प्रोडक्शन प्रॉफिट डिपेंड नहीं करता। कितना भी आप प्रोडक्शन करें, पर फैक्ट्री के बाद आपने ध्यान से दिया होगा, हमेशा उसके स्टोरेज पास में होता है, गोडाउन पास में रहता है। जो भी प्रोडक्शन होता है उसको आप पास के अंदर गोडाउन में स्टॉक रखते हैं। यहाँ भी कुदरत ने एक ऐसी व्यवस्था दी, विचार का प्रोडक्शन होता है, सद्विचार का प्रोडक्शन, पर स्टोरेज इन योर हार्ट। हृदय के अंदर सद्विचार का संग्रह करिए। प्रोडक्शन का गोडाउन तो आपका हृदय है। हृदय दयालु बन जाएगा, परोपकारी बन जाएगा। परंतु प्रोडक्शन या स्टोरेज, माल कितना भी आपके पास स्टॉक हो, वो प्रॉफिट डिपेंड नहीं करता। प्रॉफिट डिपेंड कहाँ करता है? सप्लाई। आपका माल कितना सप्लाई आपने किया, उस पर प्रॉफिट डिपेंड है। तो सप्लाई, ये हेड प्रोडक्शन, हृदय स्टोरेज, सप्लाई इन योर हैंड। परोपकार के द्वारा, सेवा के द्वारा, भक्ति के द्वारा इन विचारों को जितना प्रैक्टिकल रूप देंगे और जितना इसको आप सप्लाई करेंगे, उतने अधिक पुण्य का प्रॉफिट है। समझ गए? 3H, हेड, हार्ट एंड हैंड। ये धर्म का एक सामान्य परिचय, प्रारंभिक परिचय। बाकी तो बड़ा गूढ़ तत्व है। ज्ञानियों की भाषा में आध्यात्मिक दृष्टि से कहा गया, अंतःकरण शुद्धित्वम इति धर्मत्वम। अंतःकरण, आत्मा की शुद्धि, ये मुख्य विषय। जितना मन शुद्ध रहेगा, आत्मा की पवित्रता उतनी बनी रहेगी। कैसे रहना, ये संसार है। महावीर प्रभु की भाषा में कहा जाए, उनकी अमृतमय वाणी संसार का परिचय दिया। दुख रुए दुखानुबंधे दुखानुपरे। दुख से भरा हुआ संसार, आर्तनाद से भरा हुआ संसार, ये रोता हुआ संसार। महावीर प्रभु की भाषा में आपको अगर परिचय दिया जाए तो विचार करना पड़ेगा, और इस संसार में कोई पूर्व का पुण्य लेकर के सही स्थिति पर आ पाए। अब यहाँ ये मानव जीवन में भविष्य के निर्माण के लिए वर्तमान मिला है। अगर यहाँ आपने कुछ अच्छा काम किया तो परिणाम इसका सुंदर आएगा। जीवन के पेपर में क्या लिखा है, अंतिम समय चित्त की समाधि रही तो रिजल्ट सुंदर आएगा, सदगति प्राप्त होगी। तो मेरा कहना था, आत्मसंयम सबसे पहले जरूरी है। विचारों का संयम बहुत जरूरी है। वाणी का संयम उससे भी अधिक। सारे क्लेश का कारण वाणी का विवेक नहीं रहता, वाणी में विवेक का अंकुश नहीं रहता, और यही कारण है कि ज़्यादा क्लेश बनता है। कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है, पारिवारिक अशांति रहती है, पारिवारिक क्लेश का कारण बनता है। ये आप याद रखना। आपके जीवन में जरा ध्यान से आप देखेंगे, स्वयं अपने आत्मा का ही शत्रु है। आत्मा ही परम मित्र है। अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहानय सुहानय अप्पा मित्रम अपिंतंच दुपट्ठियो सुपट्ठियो। अंतिम देशना में प्रभु महावीर ने कहा, आत्मा ही आत्मा का परम मित्र है और आत्मा ही आत्मा का परम शत्रु है। सदगति और दुर्गति देने में आत्मा ही समर्थ है। आत्मा में उपयोग की जागृति रहे तो वो आत्मा आपके लिए परम मित्र बनता है, पुण्य उपार्जन करता है, सदगति प्राप्त करता है। पर क्लेशमय संसार के अंदर उपयोग नहीं रहा तो इसका परिणाम जरा घातक आता है। आपके जीवन में कहाँ से आप संयम प्राप्त करें, क्लेश से मुक्त कैसे बनेंगे? आपने कभी सोचा? बहुत खतरनाक है।
आपके जीवन में सबसे खतरनाक वस्तु कौन सी है? महावीर प्रभु की भाषा में कहा, भाषा समिति, आँख दो हैं काम एक है, कान दो हैं काम एक है, नाक के छेद दो हैं काम एक है, हाथ पांव दो दो हैं काम एक है, पर जीव एक है और काम दो हैं। असत्य बोल करके संसार उपार्जन करें, क्लेश पैदा करें और अभक्ष्य खा करके संसार उत्पन्न करे, दुर्गति जाने का रास्ता है। तो ज्ञानियों ने कहा सबसे खतरनाक आपकी जीव है और पहला ही नियंत्रण यहाँ आना चाहिए। समय कम है समझाने का, प्रभु ने तो बहुत रास्ते लंबे चौड़े बतलाए हैं, अपने को संक्षिप्त में इतनी जानना है। वाणी का संयम अगर आ गया तो परिवार प्रेम का मंदिर बनेगा। वाणी का संयम यदि आ गया तो सदगति का द्वार आपके लिए खुला रहेगा। तो वाणी का संयम पहले चाहिए। असत्य बोल करके संसार उपार्जन करें, अभक्ष्य खा करके। अब आज तो वर्तमान समय में कहने जैसा कुछ नहीं। कहते महाराज झूठ बोले बिना काम नहीं चलता, उपार्जन में भी असत्य का आश्रय लेना पड़ता है। गांधी जी ने हिंदुस्तान को जब आज़ाद किया, उनसे जब पूछा गया कि आपके पास ऐसी क्या शक्ति है, उन्होंने कहा सत्य है, मेरे जीवन का साथी है और सत्य को सामने रख करके मैं कार्य करता हूँ तो मुझे सफलता मिलती है। तो सत्य जो है उसका वर्तमान जरूर कठोर होगा पर भविष्य बड़ा उज्जवल होता है। एक सत्य को आश्रय, सत्य का आश्रय लेकर देश को उन्होंने आज़ादी दिलाई। जितने भी महापुरुष हुए मौन रखे, भाषा के अंदर विवेक रखा, क्लेश से मुक्त अपना जीवन बनाया और साधना के द्वारा सफलता प्राप्त की। तो अपने गृहस्थ जीवन में भी इतना उपयोग रखना है, किस तरह से बोलना, किस प्रकार बोलना, जिससे परिवार का हम प्रेम संपादन कर सकें। आज तो रोज़ आप पेपर में पढ़ते हो भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। बिना भ्रष्टाचार किए चलता नहीं। सरकार से लगा अगर सामान्य व्यक्ति तक, ये ऐसा भयंकर रोग है जो आत्मा के लिए दुर्गति का कारण बनता है, क्लेश का कारण बनता है। सत्य और सदाचारी जीवन चाहिए। सत्य का आश्रय लिया जाए तो सत्य ही स्वयं परमात्मा स्वरूप है। सत्यम शिवम सुंदरम। और महावीर प्रभु की भाषा में कहा जाए, उन्होंने कहा सत्यम खलु भगवयम, सत्य ही परमात्मा को प्राप्त करने का परम साधन है। परंतु आज के समय में तो बोलना बड़ा सरल होता है पर परमात्मा के विचार को आचरण से प्रकट करना बहुत कठिन है। होता है, खोजने पर भी ऐसे व्यक्ति आपको नहीं मिलेंगे, बहुत कम ऐसे व्यक्ति मिलेंगे। एक व्यक्ति था, कोई प्रेतात्मा ने उसके अंदर प्रवेश करके उसको हैरान करना शुरू किया। बहुत उपचार किया, बहुत मंत्र तंत्र किया पर वो छोड़ता नहीं था, हमेशा साथ में रहता। प्रेतात्मा थी, प्रवेश कर गया। अशुद्ध भी में जाते समय एक गुरु महाराज मिले और कहा भगवान हैरान हो गया, ये प्रेतात्मा से मुझे मुक्त करो, ये मुझे छोड़ता नहीं है, क्या करूं? गुरु महाराज ने कहा कोई मंत्र तंत्र की ज़रूरत नहीं, एक उपाय बतलाता हूँ। उस प्रेतात्मा को कहो कि मेरा एक काम है, तुम करके आओ। कि क्या? इस समय वर्तमान में ऐसा कोई राष्ट्र नेता हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पूर्ण निष्ठावान, सदाचारी हो, सत्यनिष्ठ हो, उसका एड्रेस और टेलीफोन नंबर लेकर आओ। वो गया तो गया, आज तक तो लौटा नहीं। ये संसार है, संसार का एक स्वरूप, ये परिचय है। एक कहाँ भारत था और कहाँ आज हम खड़े हैं। एक ज़माना था हुएनसोंग जब यहाँ भारत में आया चीन से, अपनी डायरी में लिखता है भारत भ्रमण करते समय किसी घर पर ताला तो देखा ही नहीं। वहाँ ताला में लोग समझते ही नहीं ताला होता क्या है। हर घर का द्वार खुला रहता था। कहीं जाते और प्यास लगती, पानी मांगते तो ये देश अतिथियों का सत्कार करने वाला
अतिथियों को देव तुल्य मानने वाला कोई पानी नहीं देता। कहते हैं ये तो अब अतिथि का अपमान है, पहले दूध पियो उसके बाद पानी मिलेगा। ये हमारा देश है। आने वाला अतिथि अपनी डायरी में लिखता है अगर स्वर्ग देखना है तो भारत जा कर के एक बार भ्रमण करा। बिना ताला के यहाँ लोग रहते हैं, कोई चोरी नहीं, कोई बदमाशी नहीं। वो देश था हमारा, आदिनाथ भगवान से लगाकर पार्श्वनाथ भगवंत तक और महावीर परमात्मा के जीवन तक ये हमारी व्यवस्था थी। और आज ताला तो साहूकारों के लिए, चोरों के लिए नहीं। भ्रष्टाचार आप रोज़ पढ़ते हैं, कहाँ गया? लोग कहते कहते थक गए, परंतु अभी तक हम उस पाप से छूट नहीं पाए। तो इसीलिए कहा पहले यहाँ देखिए आप, ये जीभ बड़ी खतरनाक है। झूठ बोल करके उपार्जन करना, असत्य के द्वारा संसार चलाना, ये बड़ा भयंकर जहर है, आपके प्रभु को बिगाड़ता है, सदगति का द्वार बंद करता है। तो जीवन में सबसे पहले धर्म क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले, साधना में प्रवेश करने से पहले अपने जीवन को सदाचार पर प्रतिष्ठित करें। श्रीमद् राजचंद्र जी, उन्होंने गृहस्थ जीवन के अंदर, उनका प्रसंग था, जौहरी थे। कोई किसी कारण से व्यापार में लेन देन का एक व्यवहार चलता था और जिस व्यक्ति के साथ उनका व्यवहार चलता था उसमें एक जरा समस्या पैदा हुई। अगर वो सौदा करता है तो उसको बहुत बड़ा नुकसान होता है। श्रीमद् जी के पास आया और हाथ जोड़कर निवेदन किया कि मैंने जो सौदा किया है वो बात सही है, परंतु आज की स्थिति में वो सौदा मेरे जीवन के लिए बड़ा घातक बनता है, क्या करना? श्रीमद् जी ने कहा, मैं श्रावक हूँ, महावीर का उपासक हूँ, एक साधक हूँ, किसी का खून नहीं पीता, पानी पीता। कागज़ फाड़ के फेंक दिया तो निश्चिंत हो। ऐसा जीवन हो तब साधना सुगंधमय बनता है, वो साधना आत्मा के लिए पुष्टिकारक बनता है। तो हमारे जीवन में भी सत्य का प्रवेश हो, सदाचार पर जीवन प्रतिष्ठित हो, फिर हम आगे बढ़ें। खान पान हमारा शुद्ध होना चाहिए। अशुद्ध खुराक आपके विचार को प्रभावित करता है, आपके विचार को दूषित करता है। तो सद्विचार अगर पैदा करना है तो आहार की शुद्धि भी आवश्यक है। ये सारी बहुत सी बातें हैं, ये तो मैंने आपको 2-5 मिनट में जो कहना था कह दिया। 3H याद रखिएगा, हेड, हार्ट एंड हेड। ये इसका उत्पत्ति स्थान है, ये हृदय आपका संग्रह स्थान है। सद्विचार का संग्रह, हृदय को सद्विचार का गोडाउन बनाए और जो सद्विचार आए उसे प्रैक्टिकल बनाए, देकर हाथ का सुंदर उपयोग सेवा के द्वारा, भक्ति के द्वारा और उपकार के द्वारा हाथ का उपयोग इस प्रकार से करें तो ये धर्म अपने आप आएगा। परिवार के साथ कैसे रहना, दीन दुखियों के साथ कैसे व्यवहार करना, बहुत व्यापक रूप है। धर्म कोई 2 शब्द में नहीं आता। जीवन पर्यंत हम सुनते हैं, पर सुन करके अपने आचरण में कितना लाते हैं। लंबे चौड़े प्रैक्शन और लंबे चौड़े प्रवचन से कोई मतलब नहीं। 2 शब्द भी अगर आ गया और लक्ष्य निश्चित हो गया तो फिर कहने की ज़रूरत नहीं। संसार में रह कर के अपने लक्ष्य को सामने रखिए। श्रावक जीवन के अंदर, गृहस्थ जीवन के अंदर लक्ष्य होता है जीवन को पाप से मुक्त करूं, कर्म से मुक्त करूं और संसार के बंधनों से आत्मा को मुक्त करूं। ये हमारा लक्ष्य है। पर लक्ष्य आज तक है नहीं। कौरव और पांडव गुरुजनों के पास धनुर्विद्या सीखने गए। धनुर्विद्या के अंदर उनकी जब परीक्षा का समय आया तो उनके गुरु ने बुलाया और बुलाकर पूछा कि तुम्हारी परीक्षा ले दी, तैयारी है कि हाँ भगवान, इतने वर्षों तक आपकी सेवा में रहा, आप परीक्षा ले सकते हैं। वृक्ष के ऊपर लोट का आटे का एक कबूतर बनाकर रखा था, आँख में निशान किया था। कौरवों को बुलाया और कहा
क्या दिखता है, वो लक्ष्य बतला दिया। वो आँख के अंदर तुमको तीर लगाना है, निशान वो है, लक्ष्य वो है। कौरवों ने देखा और देख करके कहा भगवान झाड़ दिखता है, कबूतर दिखता है। 100 के 100 कौरव फैल हो गए। पांडवों को बुलाया कि तुझे क्या दिखता है? क्या आकाश दिखता है, पूरा वृक्ष दिखता है, सब दिखता है। आपने बतलाया वो भी दिखता है, सब दिखता है। 4 पांडव फैल हो गए, एकमात्र अर्जुन रहा। द्रोणाचार्य ने बुला कर कहा बेटा तुझे क्या दिखता है? भगवान मेरे को तो आपने जो बतलाया वही लक्ष्य दिखता है, बाकी सब शून्य, वृक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं, कोई चीज़ नहीं दिखता है, सिर्फ आपने जो लक्ष्य बतलाया वही मुझे। छाती से लगाया, आशीर्वाद दिया, बेटा तुम उत्तीर्ण हो गया। आशु संसार में रहे और गुरुजन आपको पूछे क्या दिखता है? महाराज समय हो चुका, दुकान दिखता है, मकान दिखता है, परिवार दिखता है, सब दिखता है, लक्ष्य सिद्ध नहीं हुआ। श्रावक का 21 गुण है, श्रावक के उसमें ये गुण आता है लक्ष्य सिद्धि। हमारा लक्ष्य जो है वो सिद्ध होना चाहिए। संसार में रहे लक्ष्य तो मोक्ष का ही, कर्म से मुक्त होने का ही लक्ष्य होना चाहिए। व्यवहार भी इतना शुद्ध बने जिसमें धर्म का प्रवेश हो। धर्म के आचरण के द्वारा अपने व्यवहार का शुद्धिकरण करें, आचार को सदाचार में प्रतिष्ठित करें, वाणी का विवेक रखें, इंद्रियों का संयम रखें, तो फिर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, इसमें सब आ गया। तो आपने प्रेम से बुलाया। अब 3-4 दिन से ज़रा श्रम बहुत ज़्यादा लिया, फिर भी मैंने कहा 2 शब्द तो कहूँगा। मैंने बहुत कुछ समझाने का प्रयास भी किया। अब समय भी बहुत हो चुका है, आपने प्रेम से सुना, परमात्मा की वाणी का श्रवण किया, खूब खूब आपको धन्यवाद है। हमारे प्रकाश भाई को भी आशीर्वाद है कि जिन्होंने शुभ निमित्त दिया परमात्मा की वाणी श्रवण करने का और मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए उनको भी धन्यवाद देता हूँ। ज़्यादा समय तो अब नहीं लूँगा क्योंकि अब संध्या का समय, प्रतिक्रमण का समय है, तो फिर कभी को मौका मिलेगा अवसर देखूँगा। आज का दिन इस भूमि के लिए, प्रकाश भाई के परिवार के लिए एवं फैक्ट्री में जितने भी मेंबर काम कर रहे हैं सभी के लिए एक स्मरणीय दिन बना रहेगा। पूज्यपाद राष्ट्र संत गुरुदेव श्री का यहाँ पर आगमन हुआ। सिर्फ और सिर्फ प्रकाश भाई का प्रेम यहाँ पर खींच करके लाया। बड़े गुरुदेव कहीं पर भी नहीं जाते, जिनकी उम्र 91 इयर्स रनिंग है। पूरे भारत के अंदर 1.5 लाख किलोमीटर से भी अधिक जिनकी पद यात्रा हुई है, मेरे ख्याल से आपकी गाड़ी भी 1.5 लाख किलोमीटर नहीं चली होगी। लेकिन यह संत भारत के 7 लाख गांव, उसके अंदर 5 से 6 राज्य को छोड़ करके सभी स्टेट के अंदर जिनका जाना हुआ, सभी जगह पर अहिंसा का, शाकाहार का उपदेश देकर के कितने ही आत्माओं को व्यसनों से मुक्त कराया। और आज यहाँ पर आज पुष्य नक्षत्र है और इस पुष्य नक्षत्र के अंदर आज यह गुरुदेव श्री का इस परिवार के आग्रह के कारण से साधु हमेशा भूखे किस बात के होते हैं? सिर्फ प्रेम के भूखे होते हैं। आपकी मुट्ठी के अंदर चना है या बिदाम, वह साधु नहीं देखते, लेकिन
भाव से यदि चना भी आप हमें अर्पण करेंगे तो बिदाम से भी ज़्यादा स्वाद आएगा, और यदि फॉर्मेलिटी के हिसाब से यदि बिदाम भी अर्पण करेंगे तो चना जैसा स्वाद भी नहीं आएगा। तो आज यहाँ पर इस परिवार की भावना को देखते हुए यहाँ पर गुरुदेव श्री का आना हुआ। कोबा महावीर जैन आराधना केंद्र और श्रीमद राजचंद्र आश्रम एकदम एक ही दीवार गिनी जाए, बीच में कोई अवरोध नहीं है। और जिस संस्था की निर्माण ऐसे महान साधक आत्मानंद जी महाराज ने सेवा की भावना से जो संस्था का निर्माण किया, बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है। इस बात का हम भी करीबन 40 साल से इस बात के साक्षी हैं। उसी परंपरा को बहन श्री भी संभाल रही है, और उसी परंपरा को सुरेश जी भी जो साधक पुरुष है वह भी इस प्रकार से संभाल रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा जितने भी महान आत्माएं यहाँ पर विराजमान हैं, उन सभी लोगों के साथ और सहयोग के कारण से इस संस्था बहुत सुंदर रूप से चल रही है। इनकी सम्यक प्रवृत्तियाँ, इनकी निखालसता और इनकी सरलता और इनकी भक्ति को देखते हुए हम बहुत गौरव महसूस करते हैं कि ऐसे पड़ोसी हमारे पास में भी हैं। वो बहुत ही संस्था के अंदर सेवा देने वाले कितने कर्मठ कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं, जिनको मैं बरसों से मैं देखता हूँ। और जब कभी भी कोबा दर्शन करने के लिए बहन श्री के साथ में भाई और बहनें आती है, उस समय उनकी सरलता, उनकी नम्रता, उनकी श्रद्धा, ये सब देख करके अलग प्रकार की फीलिंग्स आती है। इस दुनिया के अंदर, इस काल के अंदर ऐसी सरलता को टिकाना बहुत डिफिकल्ट होता है। जितने भी यहाँ पर पुण्यशाली आत्माएं, परिवार के स्नेहीजन, फैक्ट्री के अंदर कार्य करने वाले और प्रकाश भाई की पूरी फैमिली, अभी सबका परिचय करा रहे थे प्रकाश भाई, लेकिन सबके चेहरे के ऊपर जो खुशी थी कि आज इतने बड़े गुरु आज हमारे घर पर आए, यानी कि हमारी फैक्ट्री में आए, इससे बड़ा हमारा परम सौभाग्य और कुछ हो नहीं सकता है। वो चेहरे के अंदर ऊपर उनके भावों को मैं पढ़ रहा था, मैं देख रहा था, और वो देख करके खुशी हुई। हमारा यहाँ आना बहुत सार्थक रहा, और यही आज पूज्य गुरुदेव श्री यहीं पे विश्राम करेंगे। कल सुबह यहाँ से प्रस्थान करेंगे। अभी बड़े गुरुदेव के हाथों से और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने एक सम्राट संप्रति म्यूजियम का उद्घाटन किया, 125 करोड़ की लागत से वह बिल्डिंग बने और हजारों करोड़ की दुर्लभ ऐसी वस्तुएं पूज्य गुरुदेव श्री ने 50-50 वर्षों की मेहनत को उन्होंने अपना सपना साकार किया। इनके कार्य को देखते हुए मोदी जी बार बार कहला रहे थे कि गुरु महाराज को कहना उद्घाटन तो मैं ही करूंगा। हर 2 महीने 3 महीने में एक बार टेलीफोन आता, पत्र भी आता, अब पूछते मुझे कब उद्घाटन के लिए आना है। तब बड़े गुरुदेव कहलाते, जैसे ही काम परिपूर्ण होगा मैं आपको जरूर से सूचित करूंगा और ये उद्घाटन आपके हाथों से होना चाहिए।
ये भारत की विरासत, भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए पूज्य गुरुदेव श्री ने जो बीड़ा उठाया था, इनकी जिंदगी का सपना इन्होंने सार्थक किया। और नरेंद्र भाई मोदी जी भी, जो कहीं पर भी 15 मिनट से अधिक रुकते नहीं, लेकिन 2.25 घंटे से भी अधिक गुरुदेव श्री के पास कोबा के अंदर रुके, और कैसी उनकी सरलता, कैसी उनकी प्रसन्नता, कैसी उनकी गुरु के प्रति भक्ति कि गुरुदेव श्री की व्हीलचेयर खुद ने चलाई। हमारे छोटे साधुओं को मना कर दिया, गुरुदेव की व्हीलचेयर तो मैं ही चलाऊंगा। कहने लगे कि आप तो कायम चलाते हो, लेकिन आज मेरे को जो अवसर मिला है, और उसमें भी परमात्मा महावीर स्वामी जी का जन्म कल्याणक, और इसके दिन आज मैं मेरे गुरु की मैं व्हीलचेयर में चलाऊंगा। तो ये गुरुदेव की व्हीलचेयर भी मोदी जी ने चलाई। ये सरलता का अपने को सामने स्पष्ट उनकी सरलता का चित्र दिख रहा है। उनके आचरण को हम देख रहे हैं कि इतने बड़े पद के ऊपर पहुंचने के बाद और एक गुरु के प्रति एक समर्पित भाव आना, ये बहुत बड़ी बात है। हम आप लोगों के हृदय के अंदर गुरु का स्थान होना एक बहुत सहज बात है। आप लोगों के हृदय के अंदर गुरु का हृदय पे स्थान होना एक सहज बात है, लेकिन गुरु के हृदय के अंदर अपना स्थान होना ये एक बहुत बड़ी पुण्य की निशानी है। एक उसी श्रृंखला के अंदर ये प्रकाश भाई की भी भावना को देखते हुए गुरुदेव श्री ने एक सहज भाव से कह दिया, मैं जरूर से तुम्हारी भावना को देखते हुए मैं आ रहा हूँ। तो आज इनका ये सपना साकार हुआ। गुरु महाराज के आने के कारण से अपने सारे के सारे प्रोग्राम इन्होंने चेंज किया, आगे की सारी मीटिंगें उन्होंने चेंज की, और इनकी दलाली करने के लिए कौन आए मालूम है? राजचंद्र आश्रम के बहन श्री स्वयं भी आए, और उनके सारे के सारे अनुयायी सब लोग आए। इसकी पहले सूचना लेकर के जैसे ही वटवा का प्रोग्राम हमारा बना, आपकी संस्था के अंदर काम करने वाला पुण्यशाली आत्मा वर्षों से जो सेवा करते हैं, वो हरीश भाई चौधरी, जो हमारे साथ कलकत्ता, दिल्ली, बिहार में साथ में ड्राइविंग के लिए रहे, वह समाचार लेकर के आए। हंसाबेन आदि सब लोग आए और कहने लगे प्रकाश भाई की भावना है और आप हमारे यहाँ पे आओ, और कल प्रकाश भाई आपको विनती करने के लिए आएंगे। कहने का मतलब ये कैसा शुभ संयोग बना, यह सभी लोगों का पुण्य, सभी लोगों की भावना, और सभी लोगों की भावना को गुरु को यहाँ पर खींच करके ले आए। ये आपका परम सौभाग्य है। आज इतना ही विशेष। अब प्रकाश भाई आगे पधारे और पूज्य गुरुदेव श्री को कमली अर्पण। मूलम गुरुमूर्ति, गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आज हमारे सद्भाग्य है, हम लोग बहुत बहुत ऋणी हैं। गुरुदेव ने हमारा आंगन पावन किया है। हम कोई शब्दों से कुछ कह सकते नहीं है, दिल भर गया है। बस गुरु जी के चरण में वंदन करके प्रथम करता हूँ। अभी यहाँ पे बड़े गुरुदेव श्री सर्वमंगल करेंगे। उसके बाद में सभी श्रावक लोग यहाँ से आकर के गुरुदेव के हाथ जोड़ करके यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। सर्वमंगल कोबा में जो मुख्य भवन है, साधुओं का निवास स्थान, आराधना का स्थान, उसका भूमि पूजन डॉक्टर सोने जी के हाथ से हुआ। हाँ, ये बात बोल दिया। श्रीमद राजचंद्र जी, जो उनकी जन्मभूमि भवानिया काठियावाड़, वहाँ के जिनालय के अंदर वहाँ की प्रतिमा की अंजन चलाकर हमारे गुरु महाराज के हाथ से हुआ।
ये मेरे को अच्छी तरह याद है। पुण्यशाली थे, मोक्ष मार्ग का परिचय दे करके गए, चलना आपको है, वो तो रास्ता बतला गया। बहुत सुंदर बात बताई। इस बात का तो मैं भी साक्षी नहीं था, लेकिन बड़े गुरुदेव श्री ने कहा जब गोवा का भूमि पूजन हुआ तब आत्मानंद जी स्वयं उनके हाथों से, बड़े गुरुदेव श्री ने कहा कि ऐसे पवित्र व्यक्ति के हाथों से यहाँ पर हमें खनन मुहूर्त कराना है। ये भी एक गौरव लेने जैसी बात है। और इनकी सरलता, ये बड़ों की सरलता इनके जीवन के आचरण से अपने को दिखती है। बहुत ही धन्यवाद है। आज आना हमारा सबका सार्थक हुआ। अभी सर्वमंगल के लिए हाथ जोड़िए और उसके बाद यहाँ पर बड़े गुरुदेव श्री के दर्शन करके यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं भाई और बहनें सभी लोग। सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम। बस धर्मराज। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रभु कृपा से गुरु मिले, गुरु कृपा से प्रभु मिले, प्रभु कृपा से गुरु मिले, गुरु कृपा से प्रभु मिले, प्रभु कृपा से गुरु मिले, गुरु कृपा से प्रभु मिले, प्रभु कृपा से गुरु मिले, गुरु कृपा से प्रभु मिले, प्रभु कृपा से गुरु मिले, गुरु कृपा से प्रभु मिले, प्रभु कृपा से गुरु मिले, गुरु कृपा से प्रभु मिले। श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। 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 गुरु ही पूर्ण प्रकाश, गुरु सूर्य है, चंद्र गुरु है, गुरु ही पूर्ण
गुरु ही अगर सुआस, गुरु फूल है, गुरु है उपवन, गुरु ही अगर सुआस, गुरु के सत्संग में मिलता है तन मन को उल्लास। गुरु सूर्य है, चंद्र गुरु है, गुरु ही पूर्ण गुरु नीर है, गुरु है नदिया, गुरु सागर है विशाल। गुरु नीर है, गुरु है नदिया, गुरु सागर है विशाल। गुरुवाणी की लहर से जीवन बन जाता है मिसाल। गुरु सूर्य है, चंद्र गुरु है, गुरु ही पूर्ण प्रकाश। જય જિનેન્દ્ર. બધા બહેનોને દર્શન કરવા માટે પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજ અને ગુરુદેવશ્રીની પરમિશન છે, પણ કોઈએ સ્પર્શ કરવાનું નથી અને દૂરથી વંદન કરી અને આપણે આગળ નીકળી જઈશું. તો બહેનોને ખાસ પ્રાર્થના છે કે દૂરથી વંદન કરીને જાય. ઓમ. गुरु है, गुरु सखा साक्षात, जीवन की मुश्किल राह में वही पकड़ता हाथ। गुरु सूर्य है, चंद्र गुरु है, गुरु ही पूर्ण प्रकाश। गुरु सूर्य है, चंद्र गुरु है, गुरु ही पूर्ण प्रकाश। गुरु के चरणों में मिलता है तन मन को उल्लास। गुरु सूर्य है, चंद्र गुरु है, गुरु ही पूर्ण प्रकाश। गुरु सूर्य है, चंद्र गुरु है, गुरु ही पूर्ण प्रकाश। गुरु सूर्य है, चंद्र गुरु है, गुरु ही पूर्ण प्रकाश। गुरु सूर्य है, चंद्र गुरु है, गुरु ही पूर्ण प्रकाश।
उल्लास। गुरु सूर्य है, चंद्र गुरु है, गुरु ही पूर्ण प्रकाश। गुरु फूल है, गुरु है उपवन, गुरु ही अगर सुआ।